Hello students, welcome to the YouTube channel Math with Ashokshan. Today we are going to start another session on the topic polynomial. Earlier we have done some topics on the basics of polynomial, on the remainder theorem, and the NCERT exercise 2.1. Today we are going to solve the NCERT exercise 2.2, and that particular exercise depends on the zeros of the polynomial. Let me introduce you the zeros of the polynomial again. The zeros of the polynomial I have explained to you before also. Suppose I have given a polynomial px is equals to x minus 4. Now what are the zeros of the polynomial? The value of the x which makes px is equals to 0. The value of the x which makes px is equals to 0. It's called zeros of the polynomial. एक ऐसी वैल्यू इस x के लिए जो इस पूरे के पूरे टर्म को, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को इज इक्वल्स टू 0 कर दे, उसे हम कहते हैं zeros और root of the polynomial. Also how we calculate it actually, मैंने आपको बताया था कि हमें जब जीरोस काउंट करना होता है तो हम px इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि हमारा px कितना हो जाए, 0 हो जाए. So we will put px is equal to 0. So px is given 4, px is given x minus 4. So we will put it is equals to 0. तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा x is equals to 4. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x की जगह 4 पुट कर दोगे, जब मैंने x की जगह 4 पुट किया तो 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0. तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस पूरे को 0 कर दी है, वो कौन है, 4 है. तो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ द या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, x इज इक्वल्स टू 4. So today we are going to solve the NCERT exercise 2.2. The particular exercise is based on the zeros of the polynomial. Let us solve the question number 1. Question number 1. Question number 1 is telling find the value of the polynomial p5x minus 4x square plus 3. You are given px is equals to 5x minus 4x square plus 3. You are given the polynomial and you have asked the values at different places. So first of all, this polynomial is not in the standard form. So let me convert it in a standard format. While converting in the standard format, what we mention actually, जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे कन्वर्ट करोगे आपको क्या ध्यान देना होता है, आपको ये ध्यान देना होता है कि आपकी जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे. तो ये पावर 2 है, देन इट इज पावर 1 एंड हियर द पावर इज 0. So now the polynomial is in standard format. You have asked the value of the polynomial at x is equals to 0. The first thing you have asked at x is equals to 0. At x is equals to 0 means what? आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जब आप x की जगह 0 पुट कर दोगे वैल्यू को तो आंसर कितना आएगा. ठीक है ना बेटा, चीजें आसान से समझना. तो मीन्स कि px मेरे पास गिवन है, px इज इक्वल्स टू माइनस 4x स्क्वायर plus 5x plus 3 and I have asked the value at x is equals to 0. So I will put 0 in place of x. ये आपका हो जाएगा 0 स्क्वायर plus 5 into 0 plus 3. So it will become, देखो बेटा माइनस 4 और 0 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर 0 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 3. नाउ माइनस 4 इंटू 0 0 plus 0 and plus 3. It means the value of the particular polynomial at x is equals to 0 will be 3. ये आपकी क्या आई, x is equals to 0 पर उस polynomial की वैल्यू आ गई. बात समझ रहे हैं. सेकेंड थिंग ये asked, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है at x is equals to -1 पे. अगर आपसे x is equals to -1 पूछा गया है, so what you will do, आप क्या करेंगे, अगर मेरे से x इज इक्वल टू 0 पूछा गया था, मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया था. अगर मुझसे x इज इक्वल टू -1 पूछा गया है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट x -1 इन प्लेस ऑफ x.
तो सेकेंड पार्ट में इसका कर रहा हूँ, हमें दिया हुआ है एट x इज इक्वल्स टू -1। इट मीन्स आपको पॉलिनोमियल px इज गिवन -4x² प्लस 5x प्लस 3। सो इट विल गिव यू p -1 is equals to -4 and square of -1 plus 5 multiply -1 plus 3। मीन्स क्या करना है कि जिस चीज के लिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको वो x की जगह पर उस वेरिएबल की जगह वो नंबर पुट कर देना है। जहां जहां भी वो वेरिएबल आ रहा है वहां पर वो नंबर पुट कर देना है। ठीक है, तो हमने p -1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। p -1 इज इक्वल टू, देखो बेटा -4 -1 का स्क्वायर जब बनेगा तो पॉजिटिव का 1 बन जाएगा, और -1 इंटू 5 जब होगा तो ये -5 बनेगा, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, आपको तो ध्यान रखना है। और ये वैल्यू आपकी बनेगी, ये आपके पास प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, वापस माइनस बन जाएगा, -5 प्लस 3। सो इट विल बिकम, देखो बेटा माइनस और माइनस दोनों सेम साइन के साथ है तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ऐड होंगे, तो इट विल बिकम -9 प्लस 3। इट मीन्स p -1 इज इक्वल्स टू -6। ये आपकी कहां पर वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल्स टू -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है। गॉट इट? द लास्ट पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड एट x इज इक्वल्स टू 2, at x is equals to 2. You can copy the question, you can copy the answer from here. I am going to solve the particular polynomial for x is equals to 2. तो देखो x is equals to 2 पर कैसे होगा। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। at x is equals to 2 पर हम इसको करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, at x is equals to 2. So px is given -4x² plus 5x plus 3. So you have asked p2. मैंने आपको पहले बताया ना, px means the variable, the polynomial in terms of x. py means the polynomial in terms of y. So p2 means the polynomial in terms of 2, you can say. Means you are going to put the value 2 in place of each and every variable. तो ये आपका बन जाएगा -4, ये आपने x की जगह 2 पुट कर दिया, प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। सो ये बन गया आपका इज इक्वल्स टू -4, 2 स्क्वायर कितना हुआ बच्चे, 4 हुआ, प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 प्लस 3। तो p2 की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है, -4 एंड 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 16 हो जाएगा। इट विल बिकम +10 एंड +3। बात समझ रहे हैं? तो p2 इज इक्वल्स टू कितना बना, देखो ये माइनस क्या है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक साथ सेम साइन वाले एक साथ सॉल्व होंगे, 13 बनाएंगे, एंड यू विल गिव द वैल्यू p2 इज इक्वल्स टू -3। कितनी वैल्यू आ गई, p2 इज इक्वल्स टू -3। कोई दिक्कत वाली बात, आराम से समझ में आ रहा है। यू कैन कॉपी द क्वेश्चन फ्रॉम हियर, आप यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं, चीजें आसान है। आपसे अगर यू कैन बी आस्क्ड एनीथिंग, आपसे पूछा जा सकता था एस x इज इक्वल्स टू 5, एट x इज इक्वल्स टू 5 अगर आपसे पूछ रहा है तो आप x की जगह 5 पुट कर दोगे। आपसे पूछा जा सकता था एट x इज इक्वल्स टू पाई जानते हैं ना आप लोग, तो आप x की जगह पाई पुट कर दो। पाई की वैल्यू नहीं पुट करने की बात कर रहा हूँ मैं, 22/7 आप नहीं पुट करना, पाई का है तो आप सिंपली पाई पुट करना और पाई के टर्म्स में एक क्वेश्चन को छोड़ देना। तो मीन्स अगर आपसे किसी भी वैल्यू के लिए निकालने को बोलता है, 0.5 बोल दे, 1/2 बोल दे, किसी भी चीज के लिए बोले, तो यू विल पुट, आप क्या करोगे, उस नंबर को जिसके लिए आपने वैल्यू निकालनी है उसको गिवन वेरिएबल की जगह, जैसे यहाँ पर मेरे पास x वेरिएबल तो x की जगह पुट कर दोगे, y वेरिएबल होता तो y की प्लेस पे पुट कर देता। बात समझ में आई है नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है बच्चे, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यू कैन कॉपी द क्वेश्चन। मैं सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको कुछ डिफरेंट पॉलिनोमियल दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इन गिवन पॉलिनोमियल्स के लिए p0, p1 और p2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब मुझे बताओ p0, p1 और p2 का मतलब क्या हो। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, p -1 की वैल्यू निकाली थी तो x की जगह -1 पुट कर दिया था, p2 की वैल्यू निकाली थी तो x की जगह 2 पुट कर दिया था। इन द सेम वे यू हैव आस्क्ड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वैल्यू ऑफ p0, p1 एंड p2, तीन वैल्यू पूछी है। तो आपको इसका मतलब क्या करना है कि जो भी वेरिएबल दिया गया है
उसमें एक बार x की 0 पुट कर देना है, एक बार x की 1 पुट करना है, एक बार x की प्लेस पे 2 पुट करना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन देन यू आर गोइंग टू सॉल्व, चीजें आसान हो जाएंगी। समझ में आ रहा है बच्चे? ये काम कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यू हैव गिवन द डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, आपको अलग अलग पॉलिनोमियल दिए गए हैं और पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है आपने, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट, पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई एंड प्लस 1। तो फर्स्टली मैं कर रहा हूं एट y इक्वल्स टू 0 पे, एट y इक्वल्स टू 0। y मैं क्यों y इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूं? क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को देखोगे आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ y p0, p0 की वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। इसका मतलब वो ये कह रहा है आपसे कि y की जगह पे 0 पुट कर दो। समझ रहे हैं बात को? तो y इक्वल्स टू 0 कर दूंगा तो इसका मतलब हो गया p0। देखो यहाँ पर भी तो y था तो ये 0 पुट हो गया, यहाँ पर y है तो 0 पुट हो गया, 0 का स्क्वायर, ये y है 0 पुट हो गया प्लस 1, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक, 0 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। नाउ 0 0 नथिंग, ये कुछ नहीं बचा, तो p0 इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया 1। p0 की वैल्यू 1 समझ में आ रही है बेटा? कैसे आ रही? हमने क्या किया, y की प्लेस पे 0 पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये आवाज एट y इक्वल्स टू 1, तो एट y इक्वल्स टू 1, एट y इक्वल्स टू 1, तो py हमको दिया गया है, py is given y square minus y plus 1. So to find out the value of p1 we will put y equals to 1। कोई दिक्कत? समझ रहे बात को? तो ये आपका क्या बन जाएगा मुझे बताइए एक बार जरा। p1 is equals to 1 स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1, कोई दिक्कत? तो ये प्लस 1 है ये माइनस 1 है, कैंसिल हो सकता है, तो आपके पास ओनली क्या बच जाएगा p1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये p1 पर आपकी वैल्यू हुई वेरिएबल की। इस पॉलिनोमियल की p1 पर इतनी वैल्यू आती है, बात समझ रहे हैं? आफ्टर दैट ये आस्क्ड द वैल्यू एट y इक्वल्स टू 2 पे आपसे वैल्यू पूछी है, y इक्वल्स टू 2 पे। y इक्वल्स टू 2 मींस क्या करना है, आपने y की प्लेस पे 2 पुट कर देना। चलो करते हैं बेटा। py आपको दिया गया है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो p एट x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2, तो y की प्लेस पे 2 पुट कर दिया, y की प्लेस पे 2 पुट माइनस 2 प्लस 1, कोई दिक्कत? देन p2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, कोई दिक्कत? देन p2, देखो ये 4 पॉजिटिव है ये 1 पॉजिटिव है, 5 हो गया माइनस 2, p2 इज इक्वल्स टू 3। p2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, कोई दिक्कत है इसमें बेटा? आराम से कर सकते हैं इस काम को। बोलो एक बार समझे क्वेश्चन को फिर से। हमें क्या पूछा गया था, एट y इक्वल्स टू 0 पर क्या वैल्यू हो जाएगी, तो हमने y की प्लेस पे 0 पुट कर दिया। हमसे पूछा गया था कि एट y इक्वल्स टू 1 पर क्या वैल्यू होगी, तो हमने क्या किया, उस प्लेस पे 1 पुट कर दिया। हमसे पूछा गया था कि एट y इक्वल्स टू 2 पर क्या वैल्यू होगी, तो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, y की प्लेस पे 2 पुट कर दिया और उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट को यू हैव आस्क्ड 2 प्लस, चलो यहाँ पे ये इसको आगे कॉपी कर लें, आई कैन इरेज इट, ठीक है बेटा। चीजें आसान है और चीजें सिंपल है ना। अभी हम इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, आराम से समझते हुए जाएंगे। चलिए, आपको दिया गया है pt, इस बार pt का मतलब क्या हुआ, द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t, मींस कि आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा उसमें आप वेरिएबल कौन सा यूज करने वाले हैं, t, उसे कहते हैं पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t। तो ये बनेंगे आपका 2 प्लस टी माइनस 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया है। कोई दिक्कत? इस पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत है? बोलो,
आपको क्या करना है, इसे अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लेके आना है। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने बताया आपको जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी होती हैं। तो ये बन जाएगा आपका माइनस का टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी एन प्लस 2। कोई दिक्कत, समझ रहे बात को। अब आपको 3 जगह पे वैल्यू पूछी थी, कौन कौन सी? आपसे P0 की वैल्यू पूछी है, आपसे P1 की वैल्यू पूछी है और आपसे P2 की वैल्यू पूछी है। मीन्स क्या करना है आपने, एक बार t इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो फर्स्ट केस हम करते हैं एट t इज इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं? अब जब मैं t इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मीन्स मैं P0 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल दिया गया माइनस टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी एन प्लस 2। कोई दिक्कत? तो t की प्लेस में 0 पुट हो जाएगा, सॉरी इट इज Pt। अब आप P0 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो t की जगह पे 0 पुट कर देंगे। ये बन जाएगा माइनस 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2। कोई दिक्कत? तो 0 का तो क्यूब कर लो, स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, 0 आ गया। प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और 0 कभी भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वापस 0 दे देगा, प्लस 0 प्लस 2। इट मीन्स P0 की वैल्यू आपके लिए बन के आ रही है 2। कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एट t इज इक्वल्स टू 1। तो t इज इक्वल्स टू 1 बोला है तो हम क्या करेंगे बेटा, t की प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसे आप कॉपी करें। नेक्स्ट आपसे बोला है एट t इज इक्वल्स टू 1। सो पॉलिनोमियल आपको pt इज इक्वल्स टू दिया गया है माइनस टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी एन प्लस 2। कोई दिक्कत? तो आप p की जगह पे क्या, t की जगह क्या पुट करने वाले हैं, 1। तो माइनस 1 क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। यहाँ पर हमने माइनस 1 क्यों रख दिया, बात समझ रहे हैं? क्योंकि t निगेटिव था, है ना, t निगेटिव था इसलिए माइनस 1 आया। तो ये आपका बन जाएगा P1 माइनस 1 का क्यूब आपके पास हो गया क्या बेटा, माइनस 1 बनेगा, ठीक है ना। प्लस 1 का स्क्वायर कितना बन जाता है, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने का तो कितना हो जाएगा, या कुछ समझने के लिए ऐसे लिखो 2 स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 2। कोई दिक्कत? तो ये वैल्यू आपके पास बनती है, देखो माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस 2। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो यह आपके पास आएगा, देखो ये प्लस 1 भी माइनस 1 कैंसिल हो गया, कितना आया 2 और 2 4। तो P1 की वैल्यू आपके पास आ रही है बेटा 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ। तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट वैल्यू आपसे पूछी गई है एट t इज इक्वल्स टू 2। एट t इज इक्वल्स टू 2 यस। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने t इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, अब हमें फाइंड आउट करनी है t इज इक्वल्स टू 2 पर। तो t इज इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू कैन कॉपी इट। मैं t की प्लेस पे 2 पुट करने वाला हूँ, आप उसको कॉपी कर लें। अब मुझे P2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं t की प्लेस पे 2 पुट कर दूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, pt is given it, so at t is equals to 2। जब मैं t की प्लेस पे 2 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा P2 is equals to माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 t की प्लेस पे 2 स्क्वायर प्लस 2 n प्लस 2। बात समझ रहे बच्चे। तो देखो माइनस 2 का क्यूब कितना होगा बेटा 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 कितना हो गया 4। कोई दिक्कत? तो ये बन जाएगा आपका माइनस 8 प्लस 4 2 8 प्लस 4। कोई दिक्कत? तो भाई ये पॉजिटिव का 8 है, ये माइनस निगेटिव का 8 है, कैंसिल हो जाएगा।
इट मीन्स P2 की वैल्यू आपके पास आ रही है 4। बात समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रही चीजें? ठीक, इस तरीके से आपको किसी भी चीज के लिए वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। आपसे P5 कहता है तो आप T की प्लेस से 5 पुट करते हैं। अभी तक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, हम 2 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। ठीक है, इरेज करते हैं इसको, कॉपी कर लें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे आपका नेक्स्ट पार्ट है जहां आपको दिया गया है px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट इज गिवन px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आपको क्या करना है, p0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड p2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस 3 वैल्यूज यू हैव आस्क्ड। तो p0 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स फर्स्ट पार्ट ना, एट x is equals to 0, it will be 0 cube and the answer will be 0। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ये गिवन आपको दिया है px is equals to x cube। पॉलिनोमियल तो सेम है, आपसे पूछा है एट x is equals to 1। तो आप px प्लस 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब हो जाएगा बच्चे, तो p1 की वैल्यू आ गई 1 क्यूब मीन्स 1। कोई दिक्कत? चीजें आसान है बेटा, देखो बार बार वही काम कर रहे हैं ना, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। px आपको दिया गया, थर्ड केस में कर रहा हूँ, px आपको दिया गया x क्यूब और आपको p2 की वैल्यू पूछी गई, एट x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो आप इसके लिए कभी 2 पुट कर दो, 2 क्यूब, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, p2 कितना आएगा बोलो, 2 क्यूब कितना हुआ, ठीक है, 8 हो गया ना। समझ रहे इस बात को? नेक्स्ट पार्ट मैं करूं, चलिए थर्ड पार्ट यू गिवन, फोर्थ पार्ट x माइनस 1 x प्लस 1, इसको कॉपी कर लें। थर्ड पार्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पूरा सॉल्व करूं, px इज इक्वल टू आपको दिया गया है x माइनस 1 x प्लस 1, कर लेंगे सर। आप इसको पहले बार सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इसे आप x माइनस से x प्लस b की आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा देखो x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की 1 से मल्टीप्लाई हो गई तो प्लस का x की इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का x एंड माइनस 1। कैसे हुआ देखो, मल्टीप्लीकेशन किया हमने, x की x से मल्टीप्लाई हुई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई प्लस 1 से हो गई प्लस x, x मल्टीप्लाई माइनस 1 से हो गई माइनस x, इट विल माइनस 1। देखो प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, देन px इज इक्वल टू क्या बच गया आपको बताओ, x स्क्वायर माइनस 1। ये आपके लिए पॉलिनोमियल काम करेगा। अब यहां से आगे आपने x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, फर्स्ट केस आपके पास दिया गया है एट x इज इक्वल टू 0। तो आप p0 की वैल्यू जब फाइंड आउट करने चलेंगे तो यहाँ आप 0 स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, बिकॉज इट इज योर पॉलिनोमियल, x की प्लेस पे 0 पुट हो गया, p0 की वैल्यू बनी 0 का स्क्वायर 0 हो गया माइनस 1, एंड द वैल्यू ऑफ p0 विल बी माइनस 1। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। अभी दो चीज और आपसे पूछी गई है इसमें, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। सेकंड पार्ट आप करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो अभी आपको px दिया गया है x स्क्वायर माइनस 1। समझ रहे हैं इस चीज को? तो अब आपने क्या करना है, x प्लेस पे 1 पुट कर देना है, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, तो p1 1 स्क्वायर 1 हो गया माइनस 1। कोई दिक्कत? तो ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, तो p1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 0। p1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर p1 की वैल्यू 0 आ रही है तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि जो 1 है ये इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है, रूट है या फिर 0 है। मैंने ये तो बोला था x की वो वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देती है उसे 0 जब तक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू को 0 किसने किया है, x इज इक्वल टू 1 ने। अगर x इज इक्वल टू 1 ने इस वैल्यू को 0 कर दिया है तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1। बात समझ रहे हैं? सोचते रहा करो, जब कोई चीज आती है तो सोचो कि उसके आगे पीछे क्या है।
दूसरी चीज आपसे पूछी गई है x इज इक्वल टू 2 पर, तो आपको P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की प्लेस देखो, Px आपको क्या दिया गया है, x स्क्वायर माइनस 1, तो P2 मीन्स यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू 2 इन प्लेस ऑफ x, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 मीन्स P2 इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत वाली बात, समझ आ गई ये चीज, समझ गए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। टोटल 4 क्वेश्चंस आर देयर, तो क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू सॉल्व। इसको आप कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग इन फ्रंट ऑफ द पॉलिनोमियल आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और एक x की वैल्यू दी गई है, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल के, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ px इज इक्वल टू x माइनस 2 और मैंने दे दिया x इज इक्वल टू 4, तो क्या ये x इज इक्वल टू 4 इसका जीरो है? कैसे पता चलेगा? हम क्या कर देंगे, x की प्लेस पे 4 पुट कर देंगे। अगर ये जीरो आ जाता है, अगर ये जीरो आ जाता तो ये जो x इज इक्वल टू 4 दिया है ये इक्वेशन का जीरो होता। अगर ये जीरो नहीं आ रहा है तो ये इक्वेशन का जीरो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them or not. फर्स्ट आपको दिया गया है, फर्स्ट पार्ट px is equals to 3x plus 1, 3x plus 1 और आपको बोला गया है x is equals to minus 1/3। अब मुझे बात बताओ, आपको चेक करना है कि ये x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इस पॉलिनोमियल के लिए रूट या फिर जीरोज है या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये जीरोज होता तो मैं अगर x की जगह पे माइनस 1/3 कर दूंगा तो आंसर जीरो बनेगा। अगर आंसर जीरो बना तो यस सर है, और अगर आंसर जीरो नहीं बना तो सर नहीं है। चलिए करते हैं। आपको दिया गया है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो आपको x की प्लेस पे क्या पुट करना है, माइनस 1/3, और x की प्लेस पे माइनस 1/3 पुट करना है, मतलब p माइनस 1/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इट विल बिकम 3 माइनस 1/3 एंड प्लस 1। कोई दिक्कत? तो ये बताओ मुझे 3 एंड 3 कैंसिल कर देगा, करेगा ना? तो आप क्या हो जाएगा, p माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड प्लस 1, माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल हो गया। इट मीन्स p माइनस 1/3 की वैल्यू कितनी आई, जीरो है। अगर ये जीरो आई तो क्या ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ? ये जीरो आई तो यस सर, यस x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज जीरोज, जीरो लिखा है, रूट लिखा है, जीरो लिखा है ना आपके उस पर, हाँ, इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर px लिख दो। यहां अगर ये जीरो आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू पुट कर देने के बाद जीरो आ जा रहा है तो यस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे करना समझ में आ रहा है? कर लेंगे इस चीज को। आप इसकी प्लेस पे एक्स की प्लेस पे पुट करना समझ रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट करके दिखाएंगे आपको। सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। चलिए करते हैं। बार बार वही चीजें हैं, चीजें आसान है, आपको समझ में आने लगी होंगी। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो हमें समझ में आती है। सेकंड पार्ट में कर रहा हूं इसका, px इज गिवन 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, हाँ 5x माइनस पाई, एंड द वैल्यू ऑफ x 4/5। आपको ये चेक करना है कि 4/5 इसके लिए जीरोस का काम करेगा या नहीं करेगा। पहली बात तो हम पाई के बारे में बात करते हैं। ये पाई क्या कांस्टेंट होता है? ये पाई जो वैल्यू हमको दिया गया है, ये पाई कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल? ये पाई हमको एक सिंबल के तौर पे दिखता है। हम जैसे x y z a b c d यूज कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये सारे हमारे लिए वेरिएबल का काम करते हैं। तो क्या पाई हमारे लिए एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है? देखो बेटा, पाई देखने से सिंबल लगता है और बच्चे नॉर्मली इसको वेरिएबल का नाम देते हैं, बट एक्चुअली ये वेरिएबल नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। ये इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि मैथमेटिक्स की में इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। ऑल्दो वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई,
हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने में अभी भी कैपेबल नहीं है, तो लेकिन उसके बावजूद भी हम इसकी वैल्यू मान के चलते हैं कि ये 22.7 है, या फिर हम इसको 3.14 मान के चलते हैं। जब मैं इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मान रहा हूं तो ये तो एक सिंबल के तौर पे यूज किया जा रहा है, अदरवाइज इसकी एक वैल्यू होने की वजह से ये कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल नहीं होगा। पहली बात तो पाई के लिए अपने कंफ्यूजन को दूर करें कि पाई एक वेरिएबल नहीं होता है, पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बात समझ रहे हैं? हालांकि मैं इस क्वेश्चन को करते समय यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट नहीं करने वाला हूँ, ध्यान देना। तो आपको एक्स इज इक्वल टू इस पे चेक करना है आपने, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पूछा गया कि जीरो है या नहीं है, तो आपको दिया गया पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, तो आपको x इज इक्वल टू 5/4 पे चेक करना है, 4/5 पे, तो आप x यहाँ पर भी x है, इसकी प्लेस पे 4/5 पुट कर दो, 5 इंटू एक्स प्लेस पे 4/5 पुट हो गया माइनस पाई, तो 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया, तो मुझे बताओ p 4/5 की वैल्यू कितनी बनी, 4 माइनस पाई। तो क्या ये वैल्यू कभी जीरो हो सकती है? अगर आप पाई की वैल्यू रख भी दोगे 22.7, तो क्या ये वैल्यू कभी जीरो हो जाएगी? कभी जीरो नहीं होगी। तो अब आप क्या बोलोगे, बिकॉज p 4/5 is not equal to 0, so it is not a zeros of polynomial px। जो आपको px दिया गया था, बिकॉज इस चीज की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, तो ये x इज इक्वल टू 4/5 आपके इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस का काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है। थर्ड पार्ट कह रहा है इसी का, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए मैं इधर करता हूं। थर्ड पार्ट इज गिवन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आपको दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसको फाइंड आउट करना है, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, दोनों के लिए चेक करना है आपको, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 के लिए चेक करना है। तो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, अब तो आदत हो गई है ना करने की। पी एक्स इज इक्वल टू क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो p1 की अगर आपको x इज इक्वल टू 1 पर फाइंड आउट करना है, इट मींस आपको p1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की प्लेस में 1 पुट हो गया, 1 स्क्वायर माइनस 1, मुझे बताओ क्या ये जीरो हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हो गया जीरो। अगर ये जीरो है तो ये तो जीरो हो गया। अब आपको -1 के लिए फाइंड आउट करना है, तो हम कर लेते हैं p -1 की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। p -1 आप चेक करने जाओगे तो x स्क्वायर -1 है, तो x की प्लेस में -1 पुट कर दिया, -1 स्क्वायर -1, तो ये बन गया आपका p -1 इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव आएगा, है ना, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कितना आएगा, कैंसिल हो गया ना, माइनस और प्लस, तो p -1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, बिकॉज दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। x इज इक्वल टू 1 रखने पर भी वैल्यू 0 आ रही है, और x इज इक्वल टू -1 रखने पर भी वैल्यू 0 आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, यस x is equals to 1 and minus 1 are zeros of given polynomial px। हाँ ये क्या है, जीरोस का काम कर रहे हैं पॉलिनोमियल px के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट x प्लस 1 एंड x माइनस 2, इसको इरेज कर देते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। जब मैं अब आप लोगों को ज्यादा कोशिश करवा चुका हूं, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एक बार खुद करने की कोशिश करो, और उसके बाद जब आंसर आ जाए तो उसके बाद मेरे आंसर को देखते हुए आंसर से मैच कर ले क्वेश्चंस को, कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पी एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2, बात सही है। तो ये आपका बने, आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 पर आपको चेक करना है, फोर्थ पार्ट है आपका, x इज इक्वल टू -1 एंड 2, इन दो प्लेसेस पे चेक करना है। पहली बात तो मैंने आपको बोला ये आपका फॉर्मेट स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप x प्लस d का आइडेंटिटी लगा लो, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, कैसे आप इसको सॉल्व कर लें। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है x प्लस 1 x माइनस 2, ये सॉल्व करके बन जाएगा x का x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर बनेगा, x का -2 से मल्टीप्लाई होगा -2x बनेगा, x का 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का x बनेगा, -2 का प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 बनेगा, बात सही है। तो ये बन जाएगा आपका px इज इक्वल टू, देखो ये दोनों लाइक टर्म है, इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, x स्क्वायर -x -2। अब कोई दिक्कत, अब आपको क्या करना है,
x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एट x इज इक्वल टू 1, तो हमने क्या, सॉरी एट x इज इक्वल टू -1, तो हमने क्या किया, p -1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब p -1 रखेंगे बेटा, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, सबसे पहले x² मतलब x की प्लेस में -1 पुट हो गया, -1² माइनस, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन मत करना, बच्चे बाहर माइनस देख के -1 का माइनस लगाएंगे नहीं साथ में, ध्यान देना ये माइनस तो किस बात का लग गया कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस था, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 पुट करनी है, तो एक बार ये भी माइनस लगेगा, इस बात को ध्यान देना। और उसके बाद क्या है, -2, तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये क्या बन गया -2। ठीक, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। वैल्यू p -1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 0 हो गया, तो मीन्स इस प्लेस पे तो 0 आ गई। अगर x इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू 0 आ गई तो यस x इज इक्वल टू -1 तो इसका रूट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज आपसे क्या पूछी गई है, एट x इज इक्वल टू 2 पर, चेक करते हैं, खुद से चेक करो, वीडियो पॉज करो, खुद से चेक करो, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना, देखते हैं जरा। यू आर गिवन px इज इक्वल टू x² -2x प्लस x² -x -2, x² -x and -2, ये पॉलिनोमियल था आपके पास जो फाइनल बन के आ रहा था सॉल्व होके। आपको सिर्फ p2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, पहली बात तो देखने वाले बच्चे को यही समझ में आ जाना चाहिए था, मैं आपको इसे देख के समझा दूं। नॉर्मली अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाएगा, चाहे एमसीक्यू टाइप में आएगा, तो इतना नहीं करने का, ये तो प्रोसेस है जिसे हम लॉन्ग मेथड में करते हैं। एमसीक्यू टाइप में आ जाए, समझने वाले बच्चे को इतना काफी है कि अगर -1 रख दोगे ना तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। एक बार सोच के देखो, अगर -1 रखोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और जब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो उसके बाद किसी से मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल वैल्यू 0 बनेगी। जब ओवरऑल वैल्यू 0 बनेगी तो मींस आंसर सही आ रहा है। अगर आपको जब x को 2 पर पुट करना है, उस बार आप यहाँ 2 रख दोगे तो सोचो 2 प्लस और 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, तो उसका अगर किसी से मल्टीप्लाई करो तब भी वैल्यू 0 बन जाएगी। जब ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, है ना। सब्जेक्टिव फॉर्मेट पे तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसकी जगह पे 2 पुट कर दें, 2² -2 and -2, है ना, तो ये बन गया 2² = 4, -2 और -2 कितना बन गया, -4, -2 -2 -4 कैंसिल हो गया, 0 बन गया। तो p2 की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 0 आ गई। अगर ये दोनों वैल्यू 0 आ रही है, आप क्या लिखेंगे, यस x = -1 and 2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, लिख सकते हैं इस बात को, कोई दिक्कत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, px = x², मैं नहीं कर रहा हूँ, x = 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत आसान सी चीज है, आप खुद से करें। सिक्स्थ पार्ट आपको दिया गया px = lx + m, lx + m। पहली बात तो मैंने, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी उसमें आपको एक बात समझाई थी, देखो जरा, मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि आपके पास कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो जनरली इस फॉर्मेट में होती है। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट जो होता है ax + b की फॉर्मेट में होता है। और अगर हाँ, तो होता क्या है, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है, वो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास जनरल फॉर्मेशन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में होता है, ax + b की फॉर्मेट में होता है। अगर आप इसकी जीरो की वैल्यू फाइंड करने जाओगे ना, इट मींस आप ax + b = 0 पुट करना चाह रहे हो। जब आप ax + b = 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, ये -b हो जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा a। मींस किसी भी जो लीनियर पॉलिनोमियल का 0 होता है ना, वो इस फॉर्मेट में होता है, -b/a की फॉर्मेट पे। जैसे अगर आपसे बोला जाए 4x + 5 की वैल्यू कहाँ पर 0 होगी, तो आपको नॉर्मली इसे देखते ही पता चल जाना चाहिए कि -5/4 पे है। और आपको अगर इसके लिए चेक करने को बोला है ना, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ नॉर्मली, अगर आपको बोला है ना -5/4 पे 0 होगा या नहीं होगा, ये चेक करने की नीड नहीं, आपको ये वाली बात पता है कि -b/a पे 0 होता है कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, और ये -b/a की फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब हाँ ये इसका 0 का काम करेगा। बात समझ रहे, ये चीज आपको कहाँ पर काम करेगी, लीनियर पॉलिनोमियल के जब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आ जाते हैं उस पर काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको, फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे। सिक्स्थ पार्ट आपको दिया हुआ है lx + m, px, ये आपका है सिक्स्थ पार्ट, lx + m, जहां पर किसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x = -m/l। मैंने इसलिए आपको बताया
देखो पहली बात तो ये एल और एम यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। जैसे ना हम एक जनरल फॉर्मेशन लिखते हैं ax प्लस बी, तो यहाँ पर a और b जो होते हैं ये कांस्टेंट का काम कर रहे होते हैं। मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, आया इसकी जगह कांस्टेंट, a की जगह कांस्टेंट आ गया, b की जगह कांस्टेंट आ गया। तो ax प्लस b की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो a और b के क्या काम कर रहे हैं, a और b कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। तो lx प्लस m लिखा है तो l और m जो है वो कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, x वेरिएबल काम कर रहा है। अगर l और m कांस्टेंट है, एक बार अभी जो मैंने फॉर्मेशन बताया तो उसके साथ देखो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि माइनस एम अपॉन एल इसका जीरो है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ax प्लस बी अगर आपको है तो माइनस बी अपॉन ए इसका जीरो होता है। कंपेयर कर लो माइनस एम अपॉन एल, इसका जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये चीजें कहाँ हेल्पफुल होती हैं, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार। आपको px दिया है lx प्लस एम और आपको चेक करना है माइनस एम अपॉन एल के लिए, तो आप p की प्लेस पे पुट कर देंगे माइनस एम ओवर एल, तो एल एक्स प्लेस पे पुट हो गया माइनस एम ओवर एल प्लस एम। देखो बच्चा ये एल और एल काट देगा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मेट में, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, माइनस एम प्लस एम। बोलो जीरो हुआ कि नहीं हुआ? जीरो हो गया ना, क्या हुआ, p माइनस एम अपॉन एल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो आप लिखोगे यस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये किस बात को शो कर रहा है, जीरोस को शो कर रहा है। ये चीजें आपको हेल्पफुल, मैं बता रहा हूँ, चीजें देखो पढ़ने का तरीका अलग होता है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर तरीका कुछ और रहेगा, जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर आपके करने का तरीका कुछ और रहेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कंप्लीट आंसर तो मांगता नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपसे सिंपल एक वर्ड का आंसर मांग रहा है। उसके लिए जरूरी नहीं कि यू आर गोइंग टू सॉल्व द कंप्लीट आंसर एंड वेस्टिंग योर टाइम, कोई नीड नहीं है। एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं तो वहां पर टाइम की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट का क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू पुट करनी है माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3, इससे आप खुद से करें। और 8th पार्ट इसका दिया हुआ px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसे भी आप खुद से करें। सेम क्वेश्चंस हो रहे हैं इसलिए मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स में कर चुका हूँ, कुछ पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप उन्हें खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको दिए हुए पॉलिनोमियल के लिए जीरो फाइंड आउट करना है। देखो भाई किसी भी वैल्यू, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है। अच्छा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं। अगर आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को ग्राफिकली समझने जाओगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, मैं आगे आप लोग पढ़ोगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है उसको लीनियर नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आप लीनियर इक्वेशन की ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो वो जैसे ये हमारे पास एक्सेस होती हैं, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, निगेटिव एक्स निगेटिव वाई, है ना। जब आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन कर्व आता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन आती है इस तरह से, ठीक है ना। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अगर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा तो एक बात ये भी समझ में आती है कि ये कहीं बार x को कट कर रहा होगा, कई बार x को कट नहीं भी कर रहा होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार x को कट करेगा। अगर ये ऐसे चला जाता है तो क्या इसने x को कट किया? बिल्कुल कट नहीं किया, y को कट किया। आपको एक बात समझा के मैं थोड़ा सा, अगर बच्चे समझ में आए तो एक बात समझा दूं, जीरोस किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे x माइनस 2 के लिए जो जीरो आ रहा है वो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, आएगा नहीं आएगा? आप इसको इक्वल टू जीरो रख दोगे तो x इज इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू जीरो बन जाएगी। तो एक बात इसका मीनिंग अगर आप ग्राफिकली समझने जाओगे तो आपको एक बात समझ में आती है कि जब आप x माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करोगे, जो किसी भी तरीके से जा सकता है, जब आप x माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करोगे कहीं से भी चला जा जाएगा, बट इतना गारंटी है कि वो जब ये x एक्सिस को कट करेगा तो जो ये वैल्यू लिखी होती है 0 1 2 इस तरह से लिखा रहता है ना, x जब ये लाइन आने के बाद इस x माइनस 2 का जो ग्राफ आएगा वो x एक्सिस को x इज इक्वल टू 2 पर कट करेगा, ये गारंटी है। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को आप ग्राफिकली अगर समझना चाहो तो ये इस बात को शो कर रहा है। जैसे मैं एक बात को दिखा रहा हूं कि माइनस एम अपॉन एल, जैसे या फिर मैं कुछ और ले लूं, मैं ले रहा हूं 5x माइनस 5, ठीक है। इसका जीरो फाइंड आउट करने जाओगे तो क्या आएगा, 5/5 1 आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप 5x माइनस 5 का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो वो x से एक्सेस को कहां पर काट रहा होगा, 1 पर काट रहा होगा। ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकली समझने के लिए होता है।
तो आपको अगर जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका मतलब देखो ये वर्ड जो जीरो है ना, वर्ड छोटा सा है, इसके मीनिंग बहुत सारे हैं। अभी आप लोग 10th में जाके इसको समझेंगे। इस पे बेस बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अपने आप में। आपको बोला गया फाइंड आउट द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको दिया गया है पॉलिनोमियल, कुछ क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपको दिया है px इज इक्वल टू x प्लस 5। बहुत आसान सी चीज है, x प्लस 5 दिया है आपको, इसका जीरोस फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द जीरोस वी ऑलवेज पुट द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, गिवन पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल है x प्लस 5 को इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -5। x इज इक्वल टू -5 आने के दो कितने मीनिंग होते हैं आप समझो एक बार। x इज इक्वल टू -5 आया, इसका मतलब क्या है कि जब आप x प्लस 5 का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस को कहां पर काटेगा, -5 पर काटेगा, पहली बात। दूसरी बात, x इज इक्वल टू -5 आने का मतलब क्या है कि भैया अगर आप x इज इक्वल टू -5 इक्वेशन पुट कर दोगे तो ओवरऑल इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। समझ रहे बात को। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसी का सेक्शन पार्ट 2। पार्ट 2 कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, x - 5 बोला है, आप लोग खुद से करें। पार्ट 3 में कर रहा हूं। पार्ट 3 कह रहा है 2x प्लस 5 px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। बिल्कुल रट लो इन चीजों को, जल्दी से बोलो क्या बोला मैंने। सॉल्यूशन अगर हम इसका जीरोज निकालना, हमको जीरोज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, px इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। और आप वैसे भी समझ सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल। तो जल्दी बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल वाले मेथड को अगर लगाओ तो क्या बनेगा। मैंने बताया लीनियर पॉलिनोमियल का जो आपका 0 होता है -b/a की फॉर्मेट में होता है, तो -5/2 बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो ये क्या बनेगा, तो थोड़ा सॉल्व करके देखोगे। 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। x इज इक्वल टू कितना है, -5/2। इसका मतलब क्या है कि जब x की जगह पे -5/2 रखोगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। या फिर जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो जो लाइन बनेगी, इस इक्वेशन की जो ग्राफ की लाइन आएगी वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर काटेगी, -5/2 के पॉइंट पर काटेगी। बोलो यस और नो, समझ में आ रही चीज। पार्ट नंबर 4 3x - 2। पार्ट नंबर 4 कह रहा आपसे 3x - 2 px इज इक्वल टू 3x - 2। बोलो जल्दी से क्या आएगा, प्लस का 2/3 आएगा, नहीं आएगा। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि प्लस का 2/3 आएगा, डायरेक्ट दिख रहा होगा बच्चों। इसको आप 0 पुट कर देंगे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3 आएगा। बोलो हाँ कि ना, समझ में आना चाहिए। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आपको दिया हुआ 3x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जल्दी बताओ। 0 बनेगी। कैसे बनेगी देखो, px इज इक्वल टू 3x आपको दिया हुआ है। ये x की वैल्यू सोचने वाली बात है, ये पूरा का पूरा 0 कब हो सकता है, जब मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 3x का मतलब क्या, 3 × x। जब मैं x के 0 पुट करूंगा तभी हो पाएगा ये काम। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, हमें क्या करना होता है, px इज इक्वल टू 0 पुट कर देना होता है। तो 3x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू बनेगा 0/3। जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। वैसे भी आप महसूस कर सकते हो, मैथ फील करने वाली चीज है बच्चे। ऊपर आप देखोगे 3 × 1 है, सॉरी 3 × x है, 3x का मतलब 3 × x है। x की जगह 1 रखो 3 बनेगा, 2 रखो 6 बनेगा, 3 रखो 9 बनेगा, 4 रखो 12 बनेगा। एक 0 ही ऐसा नंबर होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई बनेगा, इसको 0 कर देगा। इतना करने की नीड ही नहीं है आपको, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऊपर समझ में आता है। समझ में आ गया, क्वेश्चन 4 पूरा हो गया है। हाँ, क्वेश्चन 4 पूरा हो गया। इन दिस वे वी हैव डन द एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। चीजें आसान थी इस एक्सरसाइज के अंदर। धीरे धीरे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम पे अभी करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम पे एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को समझाया था। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आप लोग करेंगे और इसको एक बार अपने आप से भी करें। और बिकॉज अभी आपके पास एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी बुक के अंदर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजी दिए गए हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि ये एक्सरसाइज अपने आप में इजी है। ये जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वाला खेल है, ये खेल अपने आप में बहुत बड़े लेवल का है, समझ रहे हैं। इससे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इफ यू हैव द डिफरेंट बुक्स, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल एंड ऑल, go through the books and start solving the questions. Got it? I hope you all understand the concepts whatever I taught here in the today's lecture, and keep updated with the channel to get notified with the next videos. Thank you.